changes. Yeah, this if you're aura healthy, changes. it keeps changing. Yes, that is a spectrum that gets affected by the change in your brain, mind, and body. So that is how we say that ultimately these may be related to what is termed as soul, which nobody has seen. See, it is actually still something electromagnetic which has still not been recorded by the instruments. True. But many things we didn't know 1,000 years back. Who knew that you would be able to see the photograph of a man here, right from the person sitting, or you will communicate. And so use waves to transport all so if messages. people have some faith, and there is a concept which is building up in science, so why not use it at least as a part of treatment for the family, for the individual who is sick. Right? So whether as a scientist or as a doctor, I say no, I don't believe it. You may not believe it. But the question is, when it comes to you, you would start believing it. When your father or your mother or somebody close to you is sick, then you would find out all sorts of desperate things. हाँ, मैं कुछ भी try कर लूँ. that's सब करें. और काम करती हैं, मैं काफी सारी चीजें काम करती हूँ. हाँ, और उस faith के advantage को, चाहे वो shock को absorb करता हो, but still it's a part of treatment. तो आप उसका उपयोग, उसको वैज्ञानिक रूप से अपना इलाज जारी रखिए. But they are supportive sciences. But all these things you can do yourself. You don't need extra investments, because rest of the things they again breed, like medicine, they again breed commercialization, which of course makes the things difficult for a common. बदनामी हो जाती है उसी चीज की, that is true. चाहे एलोपैथी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, फिर बदनामी हो जाती है. Any system, like we talk of alternative therapies. Alternative therapies are wonderful if they are used as supportive sciences, but if they start saying that it will cure this and that, it means they are going beyond perception. And what they are doing now, they would charge 30,000, 50,000 for sitting in the balcony, and the common man 500 rupees. So the same thing in fact is happening. So anybody, why Mahatma Gandhi became a big man? Because he did sacrifice, right? He did nothing for himself. So if these people start doing something for the people, not expecting anything for themselves, because the recognition itself is so big कि आपको और चीजों की क्या है. और वैसे तो सब कुछ कॉमन पूल है, सारी एनर्जी कॉमन कॉन्शियसनेस है ना, तो उसी में तो डाल रहे हैं आप उसका हिस्सा हैं. बिल्कुल. So this is ये इस डिस्कशन में फिर एक बारी फिर जाएंगे, इसमें डिप करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. एक मिर्गी पड़ती है लोगों को, काफी लोगों को, स्पेशली अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में. इट्स अ कॉमन अफ्लिक्शन, डिजीज नाउ. और इसके साथ बहुत सारे भ्रम जुड़े हुए हैं और लोग अपना लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, और इसमें आपने बहुत काम किया है. उस काम पे थोड़ा रोशनी डालिएगा. एपिलेप्सी एक्चुअली क्या है कि इसका टेक्निकल टर्म है जिसमें दौरे पड़ते हैं, और इसके भ्रम या सुपरस्टिशन या अंधविश्वास जो हुए वो इसलिए कि व्यक्ति बैठा हुआ है, एकदम से बेहोश होकर हाथ पांव हिलने लगते हैं, गिर जाता है, थोड़ी देर में उठ के बैठ जाता है. तो जो पहले मैजिक डॉक्टर्स कहलाते थे, उन्होंने कहा कि इसमें प्रेत आत्मा घुस गई है और ये निकल कर बाहर हो जाती है, और वो ठीक हो जाता है. तो ये इसका कॉन्सेप्ट था. अब ये अच्छी तरह प्रूव हो चुका है कि ये मस्तिष्क की एक बीमारी है, जो ब्रेन में बिजली की तेजी होने से, जैसे आपने देखा होगा ईसीजी करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग होती है ब्रेन में, ईईजी कहलाती है. तो वो जो एक्टिविटी है ब्रेन में नॉर्मल, वो उसके बर्स्ट अगर तेज हो जाते हैं तो आपका शरीर हिलने लग जाता है. ये सारे ब्रेन को जब फैल जाता है तो आप बेहोश हो जाते हैं. तो ये एक डिजीज है जिसके कारण कई हो सकते हैं, पर आमतौर पर जो कारण है वो आजकल हिंदुस्तान से रिलेटेड खास तौर से वो सिस्ट हैं. और सिस्ट एक, ये इसलिए मैं इस चीज को यहाँ लाया हूँ कि पहले ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके, आपने देखा एक लैंडर पेस के बड़ा उस टाइम हुआ था कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया. दैट टर्न आउट टू बी ए सिस्ट, विच इज, पेट में कीड़े होते हैं वो कि सिस्ट की तरह ब्रेन में चले जाते हैं और दौरे प्रोड्यूस करते हैं. तो पहले ये मानते थे कि ये पॉर्क से होते हैं खाली, ओनली द नॉन वेजिटेरियंस. बट नाउ फॉर 20 years वी नो कि ये आपका सैलेड जो खाते हैं ना आप, अनक्लीन्ड सैलेड, अनक्लीन्ड कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी, हाँ हरे पत्तेदार अनक्लीन्ड, खास तौर से अपने लार्ज स्केल जो पार्टीज, मैरिज पार्टीज वगैरह होती हैं, और जो सब्जियां गंदे नाले के पास उगाई हुई होती हैं, उस एरिया में देखें
तो अभी देखिए कि ये जो इस तरह का एरिया है ये नॉर्थ के रीजन्स में ज़्यादा है। जी। इसीलिए जब हम 82-83 में न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस हमने चालू करी तो 85 तक हम लोग साल में 2-3 मरीज देखते थे। तो ये जब ये गंदे नाले के इस एरिया में होने लगी तो हम हफ्ते में 3 मरीज देखते हैं। My तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ My पीपल God. सफरिंग। सो एक आम आदमी को ये जानकारी में ज़रूर होना चाहिए कि आप हरी सब्जियां जो कि अनक्लीन्ड हो बिल्कुल ना खाएं। हरी सब्जियां खाना आवश्यक है बट उसकी क्लीनिंग करें। आमतौर पर अगर 3 वॉशिंग्स आप करते हैं तो निकल जाती है, नहीं तो आप एक स्मॉल पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल देते हैं उस पानी में तो वो उसको कम्प्लीटली क्लीन कर देता है। तो थोड़े से इसकी वजह से आप न केवल खुद ठीक रह पाएंगे बट बल्कि आप औरों को भी सलाह देंगे। जी। तो उससे काफ़ी कुछ जो टोटल नंबर ऑफ एपिलेप्टिक्स हैं इंडिया में आज के दिन जो ग्रो कर रहे हैं उसमें 15 to 20% ये बीमारी हो गई है। यही कारण है यही कारण होने लगा है। तो रेस्ट ऑफ द एपिलेप्सीज हैं उसमें क्या है कि जो सर्जिकल है जैसे ट्यूमर्स हैं या इस तरह के हैं उनका तो सर्जरी होती है और जो दवाओं से ठीक नहीं होती है। 80% 70% एपिलेप्सी जो है वो दवाओं से क्योर हो सकती है। क्योर का मतलब ये है कि आप 2 या 3 साल तक लगातार दवाएं लें और इसमें कॉन्टिन्यूटी इज अ मस्ट। अगर आपने बीच में छोड़ दी है, ओके। रेगुलरिटी जो लैक ऑफ रेगुलरिटी है उसकी वजह से फिट्स रिपीट होते हैं और ईच फिट ब्रिंग्स मोर फिट्स। तो इसलिए जितना जल्दी हो उसका इलाज चालू करें। वो बढ़ता ही रहता है। क्योर होने की संभावना अच्छी है। किसी भ्रम में न रहें। ये किसी देवी देवता के जो परसेप्शन है या भूत प्रेत का है वो इस मामले में बिल्कुल गलत है। आप तुरंत प्रभाव से इसका इलाज कराइए और कुछ परसेंटेज को छोड़ के जिनकी भी अब सर्जरी होने लगी है इलाज की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो गई। Dr. Panagaria, it's really an enriching experience interacting with you, but we'll be back. I need to take a short commercial break.